Okay, today we start our class. Today we take the diseases of grapes. The grapes cultivation faces threat from several diseases causing enormous economic loss to the grape growing farmers every year. The major diseases of grapes are downy mildew, powdery mildew, anthracnose, bunch rot, alternaria leaf spot, rust, bacterial leaf spot, grapevine leaf roll disease, and Bios Noir Blackwood disease. These are major diseases, but in your course, only two diseases which are very important and very damaging diseases to the crop. First, we take the downy mildew. Downy mildew means the downy growth of the mycelium of the fungus underside the leaves of plant. The downy mildew is major disease of grapes in most parts of the world where grapes are grown under humid conditions. This disease created havoc in French wine industry where the vineyard were severely affected by the epidemic of this disease. मतलब इस 1885 में फ्रेंच में एपिडेमिक आया था इस डिजीज के थ्रू, ताकि जिसके कारण वहाँ की जो वाइन इंडस्ट्रीज है वो काफी सफर हुई थी. It was during this time in 1885 French botany professor Pierre Alexis Millardet discovered the Bordeaux mixture against downy mildew pathogen. 1885 में क्या हुआ था कि जो प्रोफेसर बोर्डेक्स मिलार्डेट थे, जो बोर्डेक्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो डिस्कवर्ड द डाउनी मिल्ड्यू पैथोजन के अगेंस्ट में बोर्डेक्स मिक्सचर डिस्कवर किया था, जो कि इट वाज द इफेक्टिव कंट्रोल मेजर फॉर दिस डिजीज. The disease caused erect yield loss by rotting of inflorescence and clusters. डिजीज में क्या होता है कि इन्फ्लोरेसेंस जो फ्लोर पार्ट्स और क्लस्टर्स जो बंच होते हैं वो भी इसमें रोटेट हो जाते हैं. इनडायरेक्ट लॉस अकर्स थ्रू सिग्निफिकेंट लॉस इन फोटोसिंथेटिक एरिया बाय प्रीमेच्योर डिफोलिएशन ऑफ वाइन्स ड्यू टू फोलियर इन्फेक्शन. में क्या होता है कि इन प्रीमेच्योर डिफोलिएशन मीन्स पत्तियां गिर जाती है, जिससे फोटोसिंथेटिक एरिया और फोटोसिंथेटिक एरिया भी उनका कम हो जाता है ड्यू टू द नेक्रोसिस ऑफ द लीव्स. इससे भी प्रोडक्शन में रिडक्शन होता है. ऑलमोस्ट एंटायर क्रॉप फेल्स व्हेनेवर द कंडीशंस आर conducive for disease development. If the conditions are favorable for disease, then entire crop may be lost. Now the symptoms किस तरह से होते हैं इसमें? Irregular yellowish translucent spots on the upper surface of the leaves. मतलब जो सरफेस के ऊपर, लीव सरफेस के अपर साइड में इरेगुलर मतलब जगह जगह और येलोविश ट्रांसल्यूसेंट येलो कलर के स्पॉट्स होते हैं. कोरस्पॉन्डिंगली ऑन द लोअर सरफेस व्हाइट पाउडर ग्रोथ ऑन द लीव्स. उन्हीं स्पॉट्स के जस्ट नीचे मतलब लोअर साइड में सरफेस जो पत्तियों की लोअर सरफेस पे पाउडर ग्रोथ ऑफ द लीव्स occurs. That is the due to the mycelium of the fungus, that is cottony mycelium may be seen. Affected leaves become yellow, brown and get dry premature defoliation. After some time क्या होता है कि leaves yellow हो जाती है, then brown हो जाती है, then सूख जाती है और प्रीमेच्योर डिफोलिएशन हो जाता है, वो मतलब पत्तियां गिर जाती है. ड्वार्फिंग ऑफ टेंडर शूट्स, जो टेंडर शूट्स है वो भी उनकी ग्रोथ रुक जाती है और ब्राउन कलर के हो जाते हैं. संकन लेजन्स ऑन स्टेम्स, और स्टेम्स पे भी लेजन्स हो जाते हैं ब्राउन कलर के, जो संकन धसे हुए होते हैं. व्हाइट ग्रोथ ऑफ द फंगस ऑन बेरीज विच सब्सिक्वेंटली बिकम लेदरी. मतलब ये जो बेरीज होती है, जो फ्रूट्स होते हैं, उन पे व्हाइट ग्रोथ, फंगस की व्हाइट ग्रोथ भी दिखाई देती है, जो बाद में लेदरी हो जाती है और सिकुड़ जाते हैं और
लेदर की तरह हार्ड हो जाती है, लेदर कलर की हो जाती है, ब्राउनिश। लेटर इन्फेक्शन ऑफ बेरीज रिजल्ट इन सॉफ्ट थ्रोट सिम्टम्स, और बाद में सॉफ्ट थ्रोट हो जाती है बेरीज में। नो क्रैकिंग ऑफ द स्किन ऑफ द बेरीज, बेरीज में कोई क्रैकिंग नहीं होती है, वो श्रेवलिंग हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाते हैं। नाउ यू कैन सी द symptoms, these are the yellowish patches, yellowish spots increase in the size and they coalesce to each other and they become brown, and defoliation and death of the leaves and the defoliation before the maturity. And you can see the on stem whitish brown lesions which are sunken on the stem, and you can see the, and on the berries white mycelial growth is occurs on the berries, then they shriveled and leathery become leathery। ये देखिए आप इसमें, ये shriveled हो जाए, सिकुड़ गए फ्रूट्स और लेदरी हो गए हैं, ठीक है। Now the pathogen is Plasmopara viticola, this is belongs to the Oomycota phylum। Now the classification according to Crick and his associate 2008, domain Eukarya, kingdom is fungi, phylum is Oomycota, and class is Oomycetes, order Perennospores, family Perennosporaceae, and genus Plasmophora, and species is Viticola। Now the morphology of the pathogen, mycelium is intercellular with spherical haustoria, sinusotic, thin-walled and hyaline। mycelium कहते हैं वहाँ intercellular, in between the cells, and with spherical haustoria, haustoria बनाते हैं वो किसमें, इंसर्ट कर देते हैं उसमें होस्ट की सेल में पेग लाइक स्ट्रक्चर, देन spherical gold round haustoria बनते हैं, दे suck the nutrients from the host cells and provide to the mycelium। mycelium are sinusotic मतलब aseptate, मतलब जिनमें सेप्टा नहीं होते हैं, thin walled and hyaline, उनकी वाल थिन होती है एंड हाईलाइन होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं। स्पोरेंजियोफोर्स अराइज फ्रॉम हाइफी इन द सब स्टोमेटल स्पेसीज, जो सब स्टोमेटा स्पेस होता है उसमें स्पोरेंजियोफोर निकलते हैं, कहाँ से, हाइफी से अराइज होके स्पोरेंजियोफोर निकलते हैं। इट ब्रांचेज एट राइट एंगल्स, और उसमें राइट एंगल पे ब्रांचेज होते हैं टू द मेन एक्सिस एंड एट रेगुलर इंटरवल्स सेकेंडरी ब्रांचेज अराइज फ्रॉम लोअर ब्रांचेज, ठीक है। द स्पोरेंजिया आर थिन वॉल्ड, ओवल और लेमन शेप्ड। स्पोरेंजिया किस तरह के होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, जो कि किससे प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियोफोर से प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया, एंड they are thin walled, oval and lemon shaped, and sporangia produce the zoospores। the zoospores are pear shaped होते हैं, मतलब नाशपाती के आकार के। biflagellate means having 2 flagella and 7 to 9 micrometer in size। the oospores are thick walled, और oospore दो sexual spores resting spores होते हैं, they are thick walled। now the mode of spread and survival of the pathogen, how it spread and survive the through sporangia, by wind or rain। how to they spread, they spread by the wind or rain, हवा और बरसात की वजह से वो स्प्रेड होते हैं। as oospores present in the infected leaves, as you know the oospore is the dormant or resting bodies or sexual bodies of the pathogen, they present in the infected leaves। infected leaves में वो होते हैं या shoots में होते हैं, and berries या berries में होते हैं। all as dormant mycelium infected twigs, और ये क्या नाम, dormant mycelium के रूप में भी ये infected twigs में ये सर्वाइव करते हैं, मतलब एज ए oospore भी सर्वाइव करते हैं, और एज ए dormant mycelium भी ये infected twigs में, leaves में और shoots में ये सर्वाइव करते हैं। it's now the favorable condition for this pathogen, the optimum temperature must be 20 to 22 degree Celsius, मतलब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, and relative humidity must be 80 to 100%। if these conditions are
occur, then this is the favorable to cause the infection and growth of the pathogen and increase of the disease. Now the disease cycle you can see here, the from the infected part in the asexual reproduction, the sporangiospores produced, and sporangia produce the sporangia. By these sporangia, zoospores liberated, मतलब zoospores इनसे निकलते हैं. These zoospores are biflagellated and blown through the winds or either rain or winds, मतलब हवा और बारिश के कारण ये मतलब स्प्रेड आउट हो जाते हैं और इनके बाइफ्लैजिलेट होते हैं. दीज बाइफ्लैजिलेट zoospores come in the contact with the host surface, and they form in the cyst form, and they produce the germ tube and cause the infection in the plant. In case of sexual reproduction, oogonia and antheridium fuse together and become the oospores. Oospores are the resting spores. Whenever favorable conditions take place, they germinate and produce the sporangia. मतलब जो germinate होते हैं वो spores और वो sporangia produce करते हैं. These sporangia again produce the zoospores. These liberated zoospores again cause the infection. So this is the disease cycle of this pathogen. Now we come on the management. Management, how we can manage the fallen leaves and twigs should be collected and burned. जितनी भी जो infected leaves और twigs जो नीचे गिर जाती है ग्राउंड पे, उनको कलेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जला देना चाहिए. वाइन शुड बी प्लांटेड विथ प्रॉपर स्पेसिंग. और जब ऑर्चार्ड स्टैब्लिश करते हैं तो उनको प्रॉपर स्पेसिंग पे उनको प्लांट करना चाहिए. एंड शुड बी ट्रेंड इन सच ए मैनर दैट लीव डोंट रिमेन नियर द ग्राउंड. और इस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए उनमें कि लीव्स शुड नॉट बी टच टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे उसकी लीव्स टच नहीं होनी चाहिए. दीज प्रिकॉशन परमिट फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड रिडक्शन इन ह्यूमिडिटी. इससे क्या होता है कि एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और ह्यूमिडिटी भी रिड्यूस होगी. इफ ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज देन इट विल बी favorable for the disease in or infection by the pathogen. नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंट कल्टीवार्स. कुछ रेजिस्टेंट कल्टीवार्स है जो कि इसके अगेंस्ट में इसको अपन यूज कर सकते हैं, जैसे अमर क्वीन, चैंपियन, कार्डिनल, चंपा एंड रेड सुल्ताना. दीज आर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स. नाउ द स्प्रे, यदि डिजीज आ जाती है तो अपन क्या करें, इनिशियली अपन को स्प्रे करना है बोर्डेक्स मिक्सचर का 1% बोर्डेक्स मिक्सचर और मेटालेक्सिल मैंकोजेब या मेटालेक्सिल मैंकोजेब का स्प्रे एट द रेट ऑफ 0.4%. और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या COC जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होती है उसको 0.3% शुड बी स्प्रेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग शेड्यूल. अब इसका एक शेड्यूल बना के अकॉर्डिंग. अब फर्स्ट स्प्रे कब करते हैं, इमीडिएट आफ्टर प्रूनिंग. जैसे ही प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग के जस्ट बाद में ये इसका किसी भी फंजीसाइड का जो भी बताइए उनमें से किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं आप जस्ट आफ्टर द प्रूनिंग. सेकंड स्प्रे करते हैं 3rd to 4th वीक्स आफ्टर प्रूनिंग. देन थर्ड स्प्रे करते हैं बिफोर द बड्स ओपन. जैसे ही बड्स ओपन होती है उससे पहले ही स्प्रे करते हैं. फोर्थ स्प्रे करते हैं व्हेन बेरीज हैव फॉर्म्ड एंड. और फोर्थ स्प्रे कब करते हैं, जब बेरीज जो मतलब जैसे जैसे उसके स्टार्ट हो जाती है फ्रूटिंग, तब उसका फोर्थ स्प्रे करते हैं. एंड फिफ्थ स्प्रे करते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ शूट्स. शूट्स का जो ग्रोथ होती है तब उसका स्प्रे करते हैं. दिस इज अबाउट द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ grapes. Next we take on the bird's eye spots and anthracnose disease. This is also a dangerous disease for the crop. This is anthracnose and bird's eye disease. इसलिए इसको कहते हैं कि this symptoms appear just like a bird's eye. इस तरह के बेरीज के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि किसी पक्षी की आंख हो, है ना. The occurrence of this disease is reported from almost all growing area in the world.
मतलब संसार में जहाँ भी ग्रेप्स ग्रो करते हैं वहाँ ये सब जगह ये डिजीज रिपोर्ट की गई है। इन इंडिया दिस डिजीज इज वाइडली प्रेवलेंट इन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मतलब मोस्टली सभी एरियाज में जहाँ ग्रेप्स ग्रो करते हैं वहाँ ये इंडिया में भी ये डिजीज रिपोर्ट करी गई है और ये कंटिन्यू करीब करीब ये हर साल ये आती है डिजीज। नाउ द सिम्टम्स, द डिजीज अपीयर फर्स्ट एज ए डार्क रेड स्पॉट्स ऑन द बेरीज, मतलब सबसे पहले कैसे होते हैं, जो बेरीज होती है, फ्रूट्स होते हैं, उनके ऊपर डार्क रेड स्पॉट्स होते हैं। लेटर दीज स्पॉट्स आर सर्कुलर, बाद में ये स्पॉट्स होते हैं वो सर्कुलर हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। संकन मीन्स धसे हुए, मतलब आसी ग्रे, और फिर वो आसी ग्रे कलर के हो जाते हैं। एंड इन लेट स्टेज दीज स्पॉट्स आर सराउंडेड बाय ए डार्क मार्जिन, और बाद में क्या होता है कि ये इस जो आसी ग्रे जो स्पॉट्स है उनके सराउंड में डार्क मार्जिन होता है, विच गिव्स इट्स बर्ड्स आई रोट, मतलब ये जैसे ऐसे लगता है जैसे कि बर्ड्स की आई हो, इस तरह की रोटिंग उसमें एपियर होती है। द डिजीज वेरी इन साइज, मतलब ये स्पॉट्स इन वेरी इन साइज, मतलब 1/4 इंच लगभग होते हैं, और मतलब अबाउट हाफ ऑफ द फ्रूट्स तक ये इंक्रीज हो जाते हैं। द फ्रूट्स, द फंगस आल्सो अटैक शूट्स, टेंड्रिल, पेटियोल्स, लीफ वेन्स एंड फ्रूट्स, मतलब ये ऑलमोस्ट सभी जगह इस डिजीज का अटैक होता है, लाइक शूट्स, टेंड्रिल, पेटियोल्स, लीफ वेन्स एंड fruit stems. Numerous spots sometimes occur on young shoots. Young shoots पे भी spots दिखाई देते हैं. These spots may unite and girdle the stem. These spots increase in size and they are unite and girdle the stem. मतलब stems वहाँ से कमजोर हो जाता है, सिकुड़ जाता है और वहाँ से टूट जाता है, causing the death of the teeth. और जो उसकी जो टिप्स होती है वो टूट जाती है और वो डेड हो जाती है। स्पॉट्स ऑन पीटियोल्स एंड लीव्स काज देम टू कर्ल और बिकम डिस्टोर्टेड। पीटियोल्स पे जो और लीव्स पे जो स्पॉट्स होते हैं उनको लीव कर्लिंग हो जाती है और डिस्टोर्ट हो जाती है, वो गिर जाती है। नाउ यू कैन सी द सिम्टम्स ऑन बेरीज जस्ट लाइक यू सी इन द बर्ड्स आई, मतलब जैसे पक्षी की आंख में उस तरह के ये स्पॉट्स नजर आते हैं। इन सेंटर यू कैन सी द आसी ग्रे कलर्ड स्पॉट्स एंड सराउंडिंग द डार्क कलर्ड on the periphery of the fruits. This increase up to the half of the fruits, मतलब लगभग ये आधे फ्रूट्स तक ये इसके स्पॉट्स इंक्रीज होते हैं और रोटिंग में भी occurred inside the pulp of the fruits. Then you can see on the leaves, these are the reddish spots, they increase in size and they become damage to the leaves also. Now the pathogen is Gloeosporium ampelophagum. अब इसका पैथोजन है Gloeosporium ampelophagum and its perfect is Ilsino ampelina, मतलब इसके जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो होती है Ilsino ampelina. Now the classification again according to Crick and his associates who given on 2008. Domain is Eukarya kingdom fungi and its group is Hypomycetes, genus Gloeosporium and species Ampelophagum. Its mycelium is septate, मतलब इसका mycelium septate होता है। In case of downy mildew उसमें mycelium aseptate और सिनोसिटिक होता है। एंड डार्क कलर्ड के mycelium और उसमें हाईलाइन mycelium है। कोनिडिया सिंगल सेल्ड होते हैं, इसके कोनिडिया सिंगल सेल होते हैं, ओवल होते हैं, राउंड इन शेप एंड हाईलाइन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। नाउ द मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल, हाउ टू स्प्रेड द पैथोजन फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट टू द हेल्दी प्लांट्स एंड हाउ टू सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ प्लांट्स और इन एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। द सीड बोर्न इन्फेक्टेड वाइन डिजीज इज सीड बोर्न इन्फेक्टेड वाइन, जो इन्फेक्टेड वाइन्स होते हैं ये उन्हीं में और सीड्स में हुए जो इन्फेक्टेड वाइन से जो सीड्स मिलते हैं फ्रूट्स हैं उसी से ये स्प्रेड होता है। कटिंग एंड एयरबोर्न, और कटिंग से भी ये स्प्रेड होता है और एयरबोर्न भी कोनिडिया थ्रू एयर भी ये स्प्रेड होते हैं।
एज डोरमेंट माइसीलियम इन द इन्फेक्टेड स्टेम कैंकर्स, और ये जो माइसीलियम इसमें डोरमेंट स्टेज में पड़े रहते हैं, कहाँ उसमें, इन्फेक्टेड स्टेम कैंकर्स में। और वार्म वेट वेदर, और मतलब इसमें जो वेदर किस तरह से होना है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए और वेट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। लो लाइंग एंड बेडली ड्रेन्ड सोइल्स, मतलब जो जिसमें ड्रेनेज नहीं होता है, पानी भरा होता है, उस अवस्था में भी ये डिजीज ज्यादा फैलती है। ठीक है, दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द दिस डिजीज। वार्म एंड वेट वेदर, मतलब टेम्परेचर ज्यादा और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होनी है। ठीक है, नाउ द डिजीज साइकिल इज asexual and sexual reproduction. Both in asexual reproduction, whenever the lasers development on young shoots and leaves, these mature, if the mature of the pathogen, then pycnidial body is produced. In asexual reproduction, pycnidial bodies produce these pycnidia containing pycniospores, and these pycniospores again infect to the berries and leaves also. And in sexual reproduction, the on the mummified fruits, the perithecia may be occurs. मतलब perithecia बनते हैं उसमें, just like a cup-like structure and containing ascospores. Each perithecia having the SI. These SI produce the ascospores, and SI ascus and ascus produce the ascospores, and these ascospores again infect the berries. तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे सेक्सुअल साइकिल तो इसकी, इसमें एस्कस बनते हैं और एसेक्सुअल साइकिल में पिक्नियोस्पोर्स बनते हैं. दीज आर द विंड बोर्न और रेन स्प्लेशिंग एंड इन्फेक्ट टू द अदर हेल्दी प्लांट्स. नाउ द मैनेजमेंट बाय प्रूनिंग एंड रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड ट्विग्स. मतलब सबसे पहले जैसे ही डिजीज आपको दिखाई दे तो उनकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए और रिमूव कर देना चाहिए जो इन्फेक्टेड ट्विग्स है. डिजीज कैंकरस पार्ट्स ऑफ द वाइन फॉलोड बाय प्रोटेक्शन ऑफ प्रून्ड पार्ट्स विद बोर्डेक्स पेस्ट टू मिनिमाइज द सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम. मतलब इसमें क्या करते हैं, जैसे ही प्रूनिंग करते हैं तो फिर उसमें बोर्डेक्स पेस्ट उसमें पेस्टिंग कर देते हैं जहां प्रून पार्ट्स होता है, तो अपन डिजीज को जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम का होता है वो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. देन सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्रॉम डिजीज फ्री एरियाज. ये मतलब जो डिजीज कटिंग्स होती है उससे भी ये फैलती है, इसलिए ऑर्चार्ड स्टैब्लिश करने के लिए सिलेक्शन किससे कहाँ से करते हैं, जो डिजीज फ्री कटिंग्स होती है वो अपन यूज कर सकते हैं. एंड डिजीज डिप्ड देम इन, प्लांटिंग करने से पहले 3% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन आधा घंटे तक, मीन्स 30 मिनट्स तक आप उसको डिप करते हैं. देन वी कैन प्लांट द कटिंग्स. नेक्स्ट इज ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज. कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज है लाइक भारत अर्ली, हुसैनी. दीज आर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंथ्रेक्नोज डिजीज ऑफ ग्रेप्स. और स्प्रे फंजीसाइड्स लाइक कॉपरऑक्सीक्लोराइड, और कॉपरऑक्सीक्लोराइड का भी स्प्रे कर सकते हैं या और मैंकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ द grapes, and downy mildew is most important, and you can also contact with the books. Now thank you very much. You can leave the class. Thank you.